ایٹمی دور کا آغاز ہو گیا۔ اس سے انکار ممکن نہیں کہ اس لمحے سے ہماری زندگیوں کے ہر پہلو میں ایٹم بم کا سایہ پھیل گیا۔ تمام باشعور افراد یہ امید رکھتے ہیں کہ دنیا جوہری ہتھیاروں پر حقیقت پسندانہ کنٹرول رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی۔ جہاں ایک طرف سمجھداری کا تقاضا ہے کہ ہم کسی بھی سانحے کے لیے تیار رہیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جوہری طاقت کو سمجھنے میں کچھ وقت صرف کریں، کیونکہ اس میں دراصل اس خواب کا جواب پوشیدہ ہے جو اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان خود۔ یہ طاقت ایسی ہے جیسے انسان کے اختیار میں بے انتہا قوت رکھنے والا ایک قوی ہیکل دیو۔ یہ دیو سائنس نے کہاں سے پایا؟ ایک ایٹم سے، یعنی اس ذرے سے جو بذات خود اتنا چھوٹا ہے کہ ایک سوئی کے اوپر کا سرا بنانے کے لیے اس جیسے سینکڑوں ارب ذرات درکار ہوں۔ ایٹمز مادے کے وہ ننھے منھے بلڈنگ بلاک ہیں اور دنیا میں دکھائی دینے والی ہر شے انہی کھرب ہا کھرب ذرات سے مل کر بنی ہے۔ مثال کے طور پر بحری جہاز، جوتے، کرسیاں اور بادشاہوں کے تاج۔ اگرچہ آج تک کسی نے بھی ایٹم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر سائنسدانوں نے اس کے رویے کے بارے میں کافی کچھ دریافت کر لیا ہے۔ ہمارے پاس ایسی بہت سی تھیوریز موجود ہیں جن کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ ایٹم کس طرح کا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس موضوع پر مہارت رکھنے والے ڈاکٹر آدم سے ملتے ہیں۔ پروفیسر کو دیکھنے پر ہم جان سکتے ہیں کہ ان کی اپنی ساخت بڑی حد تک ویسی ہی ہے جیسے کوئی ایٹم انسانی جسامت میں ہمارے سامنے آ جائے۔ اسی طرح اس میں نظام شمسی سے بھی مشابہت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اس کا مرکز ہے اور الیکٹرانز اس کے گرد اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ دوسری طرف سیاروں کی گردش قدرے مختلف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فرق ہیں، مگر ارے تم کہاں چلے؟ شکریہ۔ ایٹم میں برقی میدان پایا جاتا ہے۔ الیکٹرانز منفی چارج رکھتے ہیں اور انہیں مثبت چارج رکھنے والے پروٹونز اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر ہم مرکز میں نیوکلیس کو دیکھیں تو یہاں ایسے ذرات بھی ہیں جن پر کوئی چارج نہیں ہے، انہیں ہم نیوٹرونز کہتے ہیں۔ یہ ایٹم کے اہم ذیلی ذرات ہیں جن کا ایٹم میں اہم کردار ہے۔ جب ہم جوہری توانائی کی بات کریں تو سائنسدانوں نے ایٹم کو باندھنے والی قوت یعنی بائنڈنگ فورس کو دریافت کیا ہے جو نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ایک طرح کی کائناتی گوند ہے جو نیوکلیس کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ یہ سب تو بات ہوئی ایک اکیلے ایٹم کی، مگر یاد رہے کہ تمام ایٹمز ایک جیسے نہیں ہوتے۔ قدرت میں 90 سے زیادہ بنیادی عناصر یا ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جنہیں ہم ایٹموں کے گھرانے یا ایٹم فیملی کہہ سکتے ہیں۔ سائنسدان ان ایلیمنٹس کو ان کے انفرادی ایٹم میں پائے جانے والے مثبت چارج والے ذرے یعنی پروٹون کی تعداد سے شناخت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن میں صرف ایک پروٹون ہوتا ہے، آکسیجن میں 8 پروٹونز ہوتے ہیں، اور سونے میں 79 پروٹونز، اور اسی طرح یورینیم میں 92 پروٹونز ہوتے ہیں۔ اب ایک اہم بات، ایلیمنٹس یا ایک جیسے ایٹموں کے گھرانے میں عین ممکن ہے کہ ایسے ایٹمز پائے جائیں جن میں پروٹونز کی تعداد تو مساوی ہو مگر نیوٹرونز کی تعداد میں فرق موجود ہو۔ کسی بھی ایٹم کے پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد کو جمع کرنے پر ہمیں اس کا ایٹمی وزن یا ایٹامک ویٹ ملتا ہے۔ لہٰذا قدرتی یورینیم میں U-234، U-235 اور U-238 نامی ایٹمز پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی ایلیمنٹ کے اس طرح کے مختلف ایٹم سائنس کی زبان میں آئسوٹوپس کہلاتے ہیں۔ کچھ ایلیمنٹس کے بہت سے آئسوٹوپس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ٹین کو لے لیجئے۔ اسی طرح کئی ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کا صرف ایک ہی آئسوٹوپ ہے۔ ایلیمنٹس کی اکثریت اپنی زندگی سے مطمئن دکھائی دیتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستحکم یا سٹیبل ہیں، مگر کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں جو دن رات مصروف اور بے چین رہتے ہیں اور جنہیں ہم تابکار یا ریڈیو ایکٹیو کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈیم کو لیجئے جو طاقتور شعاعیں اور ساتھ ساتھ اپنے نیوٹرونز اور پروٹونز خارج کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی اپنی جوہری ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یوں وہ اپنا گھرانہ چھوڑ کر کسی اور گھرانے یا ایلیمنٹ کا مکین ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھی نکل کر کسی اور گھرانے کا، یہاں تک کہ اس کی بے چینی رفع ہو جاتی ہے اور وہ بالآخر استحکام حاصل کر لیتا ہے۔ ایلیمنٹس میں رونما ہونے والی اس بے ساختہ اور اچانک تبدیلی کو نیچرل ٹرانسموٹیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عمل کی دریافت نے سائنسدانوں کو یہ اچھوتا خیال دیا کہ اگر ایک ایٹم قدرتی طور پر خود کو بدل سکتا ہے تو ہم مصنوعی طور پر ایک ایٹم کو خود سے کیوں نہیں تبدیل کر سکتے۔ ایک نامور برطانوی سائنسدان نے ریڈیم کے خارج کردہ ذرات کا نائٹروجن سے تصادم کرایا اور اس کے نتیجے میں اسے آکسیجن میں تبدیل کر دیا۔
आइए देखें कि इनफरादी सतह पर एटमों के साथ क्या हुआ। रेडियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को खारिज करता है, जो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। इनमें से एक प्रोटॉन नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में जज्ब हो जाता है और उसे ऑक्सीजन में बदल देता है। चूँकि यहाँ इंसानी कोशिश के नतीजे में एलिमेंट्स की साख्त को बदला गया है, लिहाजा हम इसे मसनूई या आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन का नाम देंगे। इस पहले कामयाब तजुर्बे के बाद अनगिनत साइंसदानों ने इस मैदान में काम किया और ताकतवर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बनाए ताकि मजीद एटमों की माहियत बदली जा सके। ये सब साइंसी हवाले से अहम था, मगर इसमें दुनिया को शशदर कर देने वाली कोई खास बात नहीं थी। 1939 में कुछ साइंसदान यूरेनियम की ट्रांसमुटेशन पर तजुर्बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर एक यूरेनियम जिसका न्यूक्लियस एटमों में सबसे भारी होता है पर एक न्यूट्रॉन कुव्वत से फेंका जाए तो क्या होगा। उन्होंने जब ऐसा किया तो उसके नतीजे में जौहरी फिशन का अमल दरियाफ्त हुआ और किसी मामूली सी तब्दीली के बजाय यूरेनियम का एटम 2 एटमों में बदल गया। ये एक ऐसी दरियाफ्त थी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। यूरेनियम के एक एटम का 2 एटमों में तकसीम होना साइंस का एक दोहरा करिश्मा था। पहले करिश्मे का ताल्लुक उस बाइंडिंग फोर्स से है जिसे हमने इससे कबल कायनाती गोंद का नाम दिया था, यानी वो कुव्वत जो एटम के न्यूक्लियस को जोड़ कर रखती है। हम इस कुव्वत के बारे में अभी भी सब कुछ नहीं जान पाए, मगर हम इतना मालूम कर सके हैं कि ये एक ख़ास कमियत के मुसावी है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि गोया ये एक तरह का वज़न रखती है। वो 2 एटम जिनमें यूरेनियम तकसीम हुआ वो भी अपनी अपनी बाइंडिंग फोर्स रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 2 एटमों को जोड़ने के लिए कम गोंद या कुव्वत का इस्तेमाल होता है। फिशन के अमल के दौरान जो मामूली सा हिस्सा अलग हो जाता है वो तवानाई के एक अजीम धमाके के तौर पर ज़ाहिर होता है, और यूँ आइंस्टाइन का ये नज़रिया सच साबित होता है कि कमियत यानी मास और तवानाई एक ही है। मगर हमने दोहरे करिश्मे की बात की थी। दूसरे करिश्मे को समझने के लिए हमें फिशन के अमल को लाखों गुना आहिस्ता करके देखना होगा। यूरेनियम से एक जर्रे का टकराना इस सारे अमल को जन्म देता है, जिसमें तवानाई हरारत और धमाके की सूरत में जाहिर होती है। इस मौके पर एक्सरे से मिलती जुलती कुछ ताकतवर शुआएं भी खारिज होती हैं। ये देखें कि किस तरह कुछ आज़ाद न्यूट्रॉन्स निहायत तेज़ रफ्तारी से खारिज हुए हैं। अगर यह मुनासिब तादाद में U-235 के एटम्स मौजूद हों, जिसे साइंस क्रिटिकल मास का नाम देती है, तो ये न्यूट्रॉन्स इन एटमों से टकराएंगे और उन्हें भी तकसीम करते चले जाएंगे। यूँ एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा, जिसे हम चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। इस अमल में महज 2 सेकंड्स में लाखों करोड़ों एटम्स धमाके से फटते हैं। इसकी ताकत का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि एक बड़ा स्टेडियम पूरे का पूरा डायनामाइट से भरा हुआ हो तो उसके फटने से जितनी तवानाई खारिज होगी वो उसके बराबर होगी जितनी एक बेसबॉल की जसामत के U-235 मादे के फटने पर जौहरी फिशन से खारिज होने वाली तवानाई। जब ये अमल दरियाफ्त हुआ उस वक्त दुनिया में दूसरी जंग अजीम जारी थी, लिहाजा ये हैरानी की बात नहीं कि पहला ख्याल एक हथियार के बनाने का आया। अब सवाल ये था कि यूरेनियम का इतना मवाद कहाँ से हासिल किया जाए जिससे एक एटम बम बनाया जा सके। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले यूरेनियम का एक मामूली सा हिस्सा U-235 आइसोटोप्स पर मुश्तमिल होता है और उसी की फिशन के दौरान चेन रिएक्शन के अमल में ज़रूरत पड़ती है। U-235 को अलग करना एक नामुमकिन काम दिखाई दे रहा था, मगर ये नामुमकिन काम हकीकत में ढल गया जब सनत, मजदूर, साइंसदानों और फौज ने मिलकर इस मंसूबे पर काम शुरू किया और ओक रिज में एक लेबॉर्ट्री को तामीर किया, जहां पहले एटम बम को बनाने के लिए ज़रूरत के मुताबिक U-235 को अलग कर लिया गया। इसी तरह हैनफोर्ड, वाशिंगटन में भी बज़ाहिर एक नामुमकिन नज़र आने वाले प्रोजेक्ट को मुमकिन बना दिया गया, जब मसनूई एलिमेंट प्लाटिनम की वसी पैमाने पर पैदावार के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया। इस प्रोसेस में एक ऐसा अमल शामिल था जिसे हम जौहरी तवानाई की भट्टी कह सकते हैं। रिएक्टर पाइल, ये है ग्रेफाइट के ब्लॉक्स का ढेर। रिएक्टर में कुदरती यूरेनियम की सलाखें दाखिल कर दी जाती हैं, जिसमें U-235 और U-238 दोनों शामिल हैं। जब U-235 में फिशन का अमल शुरू होता है तो ग्रेफाइट की वजह से आज़ाद होने वाले न्यूट्रॉन्स की रफ्तार घट जाती है, ताहम कुछ न्यूट्रॉन्स दूसरे U-235 एटमों से टकराते हैं और यूँ एक चेन रिएक्शन जारी रहता है। इस दौरान कुछ न्यूट्रॉन्स U-238 एटम से टकराते हैं। अब देखें कि इनके साथ क्या होता है। याद रहे कि U-238 चेन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता, अलबत्ता ये U-235 की फिशन से पैदा होने वाले न्यूट्रॉन्स को वसूल करके एक ऐसे अमल का आगाज करता है जिसमें U-238 पहले नेपच्यूनियम में बदलता है और फिर प्लूटोनियम में।
प्लूटोनियम में ये खासियत है कि वो भी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। यूं ये रिएक्टर बजाते खुद एटमी ईंधन का एक जरिया है। प्लूटोनियम बनाने के अलावा ये रिएक्टर अमन के ज़माने में एटमी तवानाई के दो नहायत अहम कामों के लिए इस्तेमाल होता है। याद रहे कि रिएक्टर में चेन रिएक्शन का अमल ज़बरदस्त हरारत पैदा करता है। साइंसदानों ने इस हरारत को काबू में लाने का तरीका सोच रखा है। यूं रिएक्टर को सनती इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जहां हरारत को अब कोयले या पेट्रोलियम से हासिल किया जाता है, मगर मुस्तकबिल में ऐसे इस्तेमाल महदूद हैं। एटमी प्लांट पे काम करने वालों को ख़तरनाक शुआओं से महफूज रखने के लिए लाजमी है कि पायल रिएक्टर को शील्ड करके रखा जाए। एटमी तवानाई के प्लांट्स ने खुद को काबिल अमल साबित किया है। मुस्तकबिल में पूरे के पूरे शहरों को बिजली फराहम करना मुमकिन हो गया है। जोहरी ताकत गाड़ियों, आबदोज़ों, बहरी जहाज़ों और हत्ता के बहुत बड़े हवाई जहाज़ों में इनकलाबी तब्दीली लाकर मुस्तकबिल में खुश्की, समंदर और हवा में ज़राए नक्लो हमल को बदल कर रख देगी। पायल रिएक्टर की गालबन सबसे अहम इजाफी पैदावार ताबकारी आइसोटोप या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। तहकीक से मालूम होता है कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पर ताबकार नहीं होते, जोहरी रिएक्टर में रखे जाने पर ताबकार मादे में तब्दील हो जाते हैं। ये आइसोटोप्स गाइगर काउंटर जैसे आलात के साथ ट्रेसर्स के तौर पर काम करते हैं और यूं गोया गैर मुरई सुराग रसां बनकर साइंस के कई मैदानों में मददगार साबित होते हैं। ज़राअत में पौधों की नशोनुमा पर खादों के असरात और इनके इस्तेमाल के दुरुस्त वक्त को जांचने के लिए भी आइसोटोप्स काम आते हैं। यूं बेहतर और ज़्यादा पैदावार यकीनी बनाई जा सकती है। सनत के मैदान में आइसोटोप्स के सैकड़ों इस्तेमाल दरियाफ्त हो चुके हैं, जैसा कि एल्यूमिनियम की शीट्स की चौड़ाई को खुदकार तरीके से कंट्रोल में लाने पर आइसोटोप सूदमंद हैं, जिनकी मदद से इंसानी मेहनत के सैकड़ों घंटे बचाए जा सकते हैं और साथ साथ ऐसी एक्यूरेसी मुमकिन बनाई जाती है जो पहले कभी मुमकिन न थी। मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री के मैदान में आइसोटोप्स तशखीस और नई दरियाफ्तों के मैदान में मोजज़े दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर रेडियो एक्टिव सोडियम की मदद से डॉक्टर्स दिल की पेचीदा बीमारियों के भेद और खून के बहाव के मसाइल के हल दरियाफ्त कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव फास्फोरस की मदद से दिमाग में मौजूद ट्यूमर्स का मुकाम दरियाफ्त किया जा रहा है और उनको वहां से हटाने के लिए ऑपरेशंस को आसान बनाया जा रहा है। इस तरह आयोडीन 131 की मदद से थायराइड की हालत मालूम की जा सकती है। कीमिया, धातकारी, मेडिसिन और हयातियात जैसे मैदानों में काम करने के लिए माहिरीन आइसोटोप्स को इस्तेमाल करने के नित नए तरीके दरियाफ्त कर रहे हैं। इंसान ने एटम के कल्ब से जो अजीम तवानाई कशीद की है, वो महज एक नहीं बल्कि कई देव हैकल अजसाम के हम पल्ला है। इनमें से एक देव एक ऐसा जंगजू है जो सबको तबाह करके रख सकता है। दूसरा देव गोया एक इंजीनियर है जो दुनिया की मशीनों को चलाने के लिए बड़ी मिकदार में तवानाई फराहम करता है। एक देव उस किसान जैसा है जो कुल दुनिया के लिए बेहतर पैदावार उगाने का ख्वाह है। एक देव उस मुआलिज की तरह है जो अमराज की तशखीस और बीमारियों के इलाज के लिए काम करता है। और आखिरी देव उस मुहक्किक की तरह है जो इस दुनिया के असरार दरियाफ्त करने के लिए साइंस में तहकीक जारी रखे हुए है। ये सब देव इंसान के अपने कब्ज़ा इख्तियार में है और वो उन्हें जो हुक्म देना चाहे दे सकता है। एटमी दौर की इस नई दुनिया में हमारी अगली नस्लों के मुस्तकबिल का इन्हिसार उस दानाई पर है जिससे हम इस अजीम ताकत को इस्तेमाल करेंगे।